مجاہد بریلوی اور احتشام لاکھ دوسرا پہلو میں حاضر ہے. میرا خیال تو یہ تھا کہ ذرا ملتان اور فیصل آباد اور پنڈی بھی لیے چلوں گا, لیکن کیونکہ احتشام نے بریک سے پہلے جو سوال کیا تھا یہ ایسا نہ ہو کہ وہ پس منظر میں چلے جائے, اس سوال کا جواب دے دیں تو پھر ہم ذرا دوسرے شہروں میں بھی دیکھیں کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی واپسی کے حوالے سے لوگ کیا توقعات, کیا خدشات رکھتے ہیں. جی جنرل صاحب, وہ جو احتشام کا سوال تھا. ہاں, میں ابھی وہی دیکھیں, جب آپ تول رہے ہوتے ہیں نا کہ کیسے کتنا خرابی ہوئی گورننس میں 2002 کے بعد. دیکھیں 2002 تک 1999 سے 2002 تک میرے سلیکٹڈ لوگ تھے. ظاہر ہے میں نے پورے پاکستان سے سلیکٹ کیا لوگوں کو, اور وہ بہترین لوگ تھے کیونکہ میں نے پیورلی میرٹ کے لیا انہیں, تو اس لیے میں نے پاکستان کی صورتحال میں تبدیلی لے آئی اور اسٹیبلائز کر لیا. اب 2002 میں الیکشنز ہوئے اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آئی. اب وہ پولیٹیکل گورنمنٹ الیکٹڈ نہیں تھے, یہ الیکٹڈ لوگ تھے. اب یہ الیکٹڈ لوگوں میں سے جب گورنمنٹ بنی تو ظاہر ہے اس میں وہ ایفیشنسی نہیں ہوگی جو پہلے تھی. اور اسپیشلی ایک اور بات بھی ہوئی کہ کولیشن گورنمنٹ بنی, کیونکہ بالکل کلیئر کٹ میجورٹی نہیں تھی. ایک کولیشن گورنمنٹ کیونکہ بنی تو اس کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں. لیکن جب میں یہ کہوں گا وہ 5 سال بھی میری نظر میں وہ فیلئر نہیں تھے. اٹ واز ناٹ اے فیلڈ 5 ایئرز. ان 5 سالوں میں پاکستان ترقی کر رہا تھا. 2006-07 میں ہمیں N11 نیکسٹ 11 کنٹریز آف دا ورلڈ میں 2006-07 میں پاکستان کو ڈکلیئر کیا گیا. اور اگر 2002 کے بعد آپ دیکھیں, چاہے آپ اس کے فورن ایکسچینج ریزرو دیکھ لیں, ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں, ہماری ریمیٹنسز دیکھ لیں, ہماری FDI دیکھ لیں, کراچی اسٹاک ایکسچینج انڈیکس دیکھ لیں, آپ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو دیکھ لیں, تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ 8.4% 2005 میں ہوئی تھی. تو یہ فیلئر نہیں تھے, یہ بہت ترقی کے دن تھے ہر سوشیو اکنامک فیلڈ میں. آپ دیکھیں کہ کنال, یہ کچی کنال, رینی کنال, ٹل کنال, پکا کھالوں کو پکا کرنا, کوسٹل ہائی وے, گوادر سے رٹو ڈیرو سڑک, گوادر پورٹ, یہ کب بنی ہے؟ یہ 2002 سے 2008 تک کے پیریڈ میں بنی ہے جی. تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں دوبارہ, پلیز انڈرسٹینڈ کہ گورننس کیا چیز ہے. کون سے شعبے میں آپ انڈسٹری لیں, آپ ٹیلی کمیونیکیشن لیں, ٹیلی کمیونیکیشن 5 لاکھ ٹیلی فونوں سے 8 کروڑ ٹیلی فون بن گئے. یہ کب ہوئے ہیں؟ یہ 2001 سے شروع ہوئے اور 2006-07 میں یہ پیک پہ پہنچے ہیں. تو یہ باتیں ہیں اس کو. تو اس لیے میں یہ بھی کرنا چاہوں گا, جن پولیٹیکل حضرات کی آپ برائیاں کر رہے ہیں, میں پرویز الہی کی, آپ پرویز الہی آئی تھنک واز اے سکسیسفل چیف منسٹر. ایک انہوں نے پنجاب کو اچھی سکسیسفلی چلایا ہے. میں سپروائز ضرور کر رہا تھا, میں اوور آل ان کو ہدایت وغیرہ دے رہا تھا, لیکن اچھے چل. تو پلیز میں اس سے بالکل ایگری نہیں کر رہا ہوں کہ بالکل ہی فیلئر ہو گیا وہ. حقانی نیٹ ورک اور باقی معاملات بھی تھے, یہ اس وقت اسٹیبلش ہوئے جب آپ کی حکومت تھی, یعنی جو کنیکشن بالواسطہ طور پر ہم نے کس حد تک نیٹو افواج آئیں, کس حد تک ہم افغان طالبان کو, یہ طالبان کو, جو کچھ بھی ہمارے ریلیشن تھے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ واقعی حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے جو ہماری ایجنسی پر, فوج پر الزام لگایا جاتا ہے یہ درست ہے, اور اس حوالے سے امریکہ کتنا آگے تک جائے گا ہمارے خلاف؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ حقانی نیٹ ورک جس شکل میں اب ہے اور جس کے اوپر اس کے الزامات ہیں اور جس فورس کے ساتھ اب ہے, یہ میرے زمانے میں کبھی بھی نہیں تھا. یہ آپ کو ذرا آپ پیچھے جائیں, اپنی نیوز کو دیکھیں, آپ 2007-08 سے پہلے آپ کو حقانی نیٹ ورک کا ذکر نارتھ وزیرستان میں نہیں نظر آئے گا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ گرو ہوتے رہے, اور اب ان کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ امریکہ کو بہت تشویش ہے ان کے اوپر, اور پاکستان آرمی ایکٹ نہیں کر رہی. لیکن میری نظر میں اس میں تشویش ضرور ہے, لیکن اس میں یہ سمجھنا کہ پاکستان فوج اور ISI ان کے ساتھ ملوث ہے, یہ بالکل غلط ہے. پاکستان کی اوور آل اسٹریٹجی آرمی کی یا ISI کی, مجھے پورا یقین ہے یہ وہی ہے کہ ہمیں ٹیررزم کے خلاف اور طالبان اور القاعدہ کے خلاف ہے. اب ان کے خلاف ہے میرے خیال میں, لیکن اس کی
हाउ टू डील विद इट, द टैक्टिक्स और मोडेलिटीज, उसमें शायद डिसएग्रीमेंट है विद यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनको क्लैरिफिकेशन दें कि हम मुलव्विस नहीं है उनके साथ, लेकिन हमारी अलग एक हिकमत अमली है, वो बताएं उनको और समझाएं। एहतशाम इस हवाले से बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं देखते अमेरिका का, वो कहते हैं हम यूनिलैटरल सब कुछ नहीं, कर हाँ, सकते हैं। ये आपने सवाल किया था। यस, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट सी बूट्स ऑन ग्राउंड। मेरे ये बिल्कुल उनकी बहुत बड़ी गलती हुई होगी अगर वहां बूट्स ऑन ग्राउंड वो क्रॉस आ जाए। मिलिट्री में एक टर्म है डाइल्यूशन इन स्पेस, जब आप फोर्स को अप्लाई कहीं भी उसको स्पेस के रिलेशनशिप से करते हैं, और वहां इस वक्त स्पेस ज्यादा है और फोर्स कम है अफगानिस्तान में। तो अगर आपने स्पेस और मजीद इंक्रीज की अमेरिकन फोर्सेज ने, तो वो और ज्यादा डाइल्यूट हो जाएंगे स्पेस में। ये मिलिट्री वाइज, मिलिट्री स्ट्रैटेजी वाइज बहुत बड़ी गलती होगी, और ये इलाका पहाड़ी इलाका है, इसमें वो सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। तो ऑल दैट आई कैन सी कि ये एक हिट एंड रन टाइप चीज ऑपरेशन शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी है कि वो उसामा बिन लादेन टाइप ये जो एबटाबाद आए थे, इस किस्म के एक फास्ट कमांडो एक्शन टाइप चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत होंगी और पाकिस्तान के अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत होंगी, और अमेरिका को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर अमेरिका हमें छोड़कर चला गया जितना पास में छोड़ के गया था इस वक्त, तो हम क्या मुकाबला कर सकेंगे उस जंगजू तालिबान का जो उस तरफ से भी आ रहे हैं और इधर भी मौजूद हैं? यस, नाउ ये जितने भी मैंने अमेरिका में लेक्चर दे रहा था उसमें मैंने 4 चीजें मैंने कहा कि पाकिस्तान को ओनस ऑफ क्लैरिफाई करने का, उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारे गए हैं, वो एक कॉम्प्लिसिटी नहीं थी, नेग्लिजेंस थी, ये पाकिस्तान को प्रूव करना चाहिए। दूसरी के मतलब हम उसमें मुलव्वस नहीं थे, बल्कि एक हमारी तरफ से नेग्लिजेंस हुई है। दूसरी कि ये सिराज हक्कानी ग्रुप के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट क्यों नहीं कर रही है, ये भी पाकिस्तान को समझाना है। लेकिन उधर अमेरिका को हमें बताना चाहिए कि 2014 में जब ये जाते हैं तो सूरत हाल क्या छोड़कर जाएंगे अफगानिस्तान में। तो मैंने उनको वहां भी बताया है कि या तो सूरत हाल अगर वो स्टेबलाइज नहीं हुई तो वो या तो 1989 वाली सिचुएशन पे जाएंगे, जबकि 10-11 डिफरेंट ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे अफगानिस्तान में और उसका बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान। फिर 1996 जब तालिबान एक तरफ और नॉर्दर्न अलायंस दूसरी तरफ, इन दोनों सिचुएशन में पाकिस्तान के ऊपर उसका मलबा गिरेगा और पाकिस्तान को अपनी दिफा करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें अमेरिका को चाहिए कि हमें कंफर्ट दें कि वो हमारे लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं वहां, और हमारी मदद 2014 के बाद कैसे करेंगे, ये उन पे डिपेंड कर रहा है। और प्लस अमेरिका के फौज और सदर के दरमियान इख्तलाफात की बातें हो रही है मंसूर एजाज का आर्टिकल एफटी में छपने के बाद, और फिर जो आगे कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, मंसूर इजाज को ऐसे बंदे को कोर्ट में ना करें जिसको मैं ज्यादा जिसके बारे में समझता नहीं हूं और जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए मैं अगर कोई और बात करना चाहते हैं करें, लेकिन उनकी बात को मैं क्रेडिबिलिटी नहीं देता हूँ। चले तो फिर आपको जरा सा हम ये दिखा देते हैं कि ये इस वक्त हो गया कि जरा मुल्तान और फैसलाबाद और पिंडी के लोग, इस्लामाबाद के लोग किस तरह देख रहे हैं साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आपकी वापसी के हवाले से? मुशर्रफ को भी आना चाहिए, उनका दौर अच्छा रहा है। मेरे नहीं ख्याल में कि वो अगर आएगा तो यहाँ शिवपुर ने हिस्सा ले सकेगा, उसको तो मेरे ख्याल में पकड़ लेंगे। ये मुल्क के लिए वो काफी बेहतर हैं, उनके कुछ फैसले अच्छे हैं, लेकिन कुछ से इख्तलाफ भी है अवाम को। अगर मुल्क के हक में बेहतर हैं तो उन्हें लाजमी आना चाहिए। मुशर्रफ साहब को नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कौम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए। मुल्क का सामना करना पड़ेगा, मगर वो मुल्क के लिए बेहतर थे, उनको आना चाहिए पाकिस्तान में। नहीं आएंगे जी, मुशर्रफ साहब 2012 में जरूर पाकिस्तान आएंगे, उन्होंने काफी सारे अच्छे काम किए, मतलब इस हुकूमत से तो अच्छी हुकूमत थी ना उनकी। परवेज मुशर्रफ का मुश्किल है। मुशर्रफ साहब आएंगे तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना होगा। अगर आने का कोई इसको बढ़के जो लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जो है ना उनको सपोर्ट कर रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान जो प्यादा है स्टैब्लिशमेंट का और परवेज मुशर्रफ को मिला के कुछ
गेम करना चाहते हैं। कि मुशर्रफ जब आएगा तो सबसे पहले तो उसको अदालत का सामना करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं मुशर्रफ को आना चाहिए, और खतरे की बात है वो मेरे ख्याल से जरदारी के अलावा उनको किसी चीज से खतरा नहीं होगा। मैं ये कहूँगा कि मुशर्रफ को इधर आना ही नहीं चाहिए। अगर वो आए तो मैं कहता हूँ तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ अलायंस करके वो अनाउंसमेंट करें। और परवेज मुशर्रफ जो है किस सूरत हाल पाकिस्तान में आ सकता है? मुशर्रफ को पाकिस्तान में आना चाहिए, और उनसे डर है जरदारी और शबाशी से डर है, और किसी से डर नहीं है। ये मुशर्रफ आ ही नहीं सकता। पाकिस्तान में आना चाहिए, क्योंकि जरदारी को जाना होगा तो फिर हमारे कारोबार बहाल होंगे। आज तक उसने जो भी उसने वो किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके गेम, यहाँ पे मुकदमे चल रहे हैं। देन आई विल से एवरीथिंग इज पॉसिबल इन बाकी आदमी है, पक्का है, जो कहता है वो बिल्कुल पूरा करता है। ईमानदार फौजी आदमी गोली से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता। ये सियासी जो है दोनों पार्टी की मौत से डरते हैं। कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये पाकिस्तान में कुछ कह नहीं सकते, जैसे वो गए हैं वैसे आ भी सकते हैं। हाँ, आना तो चाहिए, मगर जगह जरा मुश्किल है, थोड़ा उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक सो आ जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएं तो सबके लिए अच्छा है, और आ जाएंगे। मुशर्रफ साहब मेरा तो नहीं ख्याल कि कभी भी आएंगे। वो किसी तरह के चैलेंज भी ले सकते हैं, वो किसी से नहीं डरते। मुझे तो इस तरह लगता है कि वो आ जाएंगे। वो आएंगे, जरूर आएंगे। इज अ ब्रेव मैन, उसने बहुत कुछ किया पाकिस्तान के लिए, उसे आना चाहिए। आना तो चाहिए, क्योंकि जरदारी तो किसी काम का नहीं है। उनके जो अंडर में था तो कुछ लग रहा था कि कुछ हो सकता है पाकिस्तान का। जी आए तो अच्छी बात है, जरदारी से तो उसकी अच्छी हुकूमत थी। कुछ नामुमकिन सी बात लग रही है। मुश्किल है, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। उनको आना चाहिए उसी। आई थिंक आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। मुझे भी लगता है आ जाएंगे। एहतिशाम 1 मिनट है। मुशर्रफ साहब, ये इस्लामाबाद, मुल्तान और हर जगह हम लोगों ने कोशिश की, तो क्या कहेंगे? ये जो डिवाइड है वैसे लोग इस बारे में? यह डिवाइड मेरी नजर में पॉजिटिव है। अच्छा। और अगर कोई मेरे अगेंस्ट इधर कम से कम अगेंस्ट मेरी पॉलिसीज के अगेंस्ट कोई नहीं बोला है, एक्सेप्ट कि वो शक दिखा रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा शायद, या मैं डर जाऊंगा, नहीं आऊंगा, कुछ लोग कह रहे थे, तो दैट इज पॉजिटिव। लेकिन मैं इन सबको जो समझ रहे हैं मैं नहीं आऊंगा, मैं इन सबको गलत प्रूव करूंगा। ये मुझे मालूम है, मेरा दिल मुझे पता है मैं क्या करूंगा, तो इसलिए ये मैं इन सबको गलत प्रूव करूंगा। और एहतिशाम आज हमें एक सवाल और 1 मिनट में जवाब से चल सकेंगे। हाँ, किसके साथ चल सकेंगे? एहतिशाम पूछ रहे हैं। तहरीक इंसाफ, MQM। समझे एहतिशाम? समझा नहीं मैं, क्या पूछा आपने? मैं कह रहा हूँ कि आप किसी पार्टी के साथ, कुछ ग्रुपों के साथ कोई अलायंस करना चाहेंगे जब आएंगे आपकी पार्टी? देखिए यश, मैं समझता हूँ कि मैंने जैसे हमेशा कहा है कि एक पॉलिटिकल स्टेटस को तोड़ना है। ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटस को जो है, जो टेस्टेड, ट्राइड एंड फेल्ड पार्टीज हैं, उनको दोबारा नहीं आना चाहिए। नया एक पॉलिटिकल रियलिटी सामने आनी चाहिए। उस सिलसिले में अगर मैं अकेला कुछ बना सकता हूँ तो वो तो बेस्ट है, लेकिन मेरी नजर में इस वक्त मैं ये नहीं कह सकता हूँ। बाद में क्या होता है 1-1.5 साल में, कोई मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि जो भी लाइक माइंडेड हैं, कोई ऐसे लोग, उनको साथ ही लेकर चलना चाहिए, कोलिशन बनानी चाहिए। सवाल अपनी जगह रहेगा और यकीनन इस पर गुफ्तगू भी होगी, और एक मुलाकात और एक इंटरव्यू मुमकिन भी नहीं था कि हम इन बहुत सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। लेकिन साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का कहना है, और आपने देखा कहेंगे आएंगे 23 मार्च को आएंगे, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तहरीक इंसाफ के जलसे की सूरत सामने फिर इसी वक्त आएंगे।